پڑھتا جا چڑھتا جا. قرآن شریف کوئی عمل کر لیا تو حافظ صاحب نہیں. قرآن شریف پر کوئی عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے پڑھا دیں گے, چڑھا دیں گے. کیا کریں گے؟ پڑھا دیں گے, چڑھا دیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے کیا؟ الف با کہیں پڑھے تھے آپ؟ کسی استاد کے پاس اقرا بولا اللہ تعالیٰ, ماں میں بقاری, میں پڑھتا نہیں, جانتا نہیں پڑھنا کیا چیز ہے. او فرشتے لے دبوچے, اللہ سکھا دیا پڑھنا. دھنادن دھنادن دنیا میں دکھایا تمہارا نبی یہ امی ہے, ہماری رحمت سے پڑھا دیا ہم اسے. پڑھنا جاننا ضروری نہیں جب اللہ پڑھانا چاہتے ہیں. قیامت کے اندر کوئی قرآن پر عمل کر کے چلے گیا, ان پڑھ ہے, رکشا چلاتا ہے, الف با نہیں معلوم, لیکن قرآن کو پوچھ کے اپنی زندگی میں بسا لیا, بنا لیا زندگی کو. بھرپور لطف ہے قرآن سے. قرآن کیا کہتا ہے؟ رسول کی اطاعت کرو تو رسول کی اطاعت کرتا ہے. قرآن کہتا ہے سود سے بچو, اللہ سود سے بچتا ہے. قرآن کہتا ہے حرام چیزوں سے بچو, حرام چیزوں سے بچتا ہے. قرآن جو کہتا ہے اس پر آمنا, صدقنا, عملنا, عمل کرتا ہے. زندگی میں قرآن کو بسا لیا. وہ رکشا چلانے والے کے اندر بھی نور آ جائے گا, لوگ اسے دیکھتے رہیں گے کیا نورانی چہرہ ہے. کاش کہ ہمارے مسلمان اس قرآن کو لے کر اپنے چہرے کو نورانی بنا لیتے. موٹی موٹی دین کی باتیں بھی مسلمانوں کے لیے وزن ہو گئی. کوئی کم وقت آدھے بال یہاں سے نکالتا ہے تو ہمارے نوجوان آدھے بال نکال کے گھوم رہے ہیں, نعوذ باللہ. کوئی لمبے چھوڑ لیا تو لمبے چھوڑ کے نکل گئے. ہمارے نبی کہتے ہیں داڑھی لمبی کرو. یہاں آنے والے بھی تیار نہیں, برسوں سے سن کے بھی. نفس بڑا خطرناک ہے ان کا. مجھے ڈر ہے یہ سنتے سنتے کہیں ان کے گناہ کی پختگی نہ ہو جائے. آدمی سن کر چینج ہونا چاہیے. اگر آپ کا دل نہیں بدلتا ہے تو بہتر ہے آپ واز بیان نہ سنیں. میرا مشورہ ہے چھوٹے علم سے. آپ کا دل ذرا بھی بدلتا نہیں, چینج نہیں ہوتا تو مجھے ڈر ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے, پھر کوئی طاقت نہیں کہ دل کے دروازوں کو کھولے. پھر کوئی طاقت نہیں کہ دل کے دروازوں کو کھولے. اگر آپ کا دل ذرا کھلتا ہے اور بات سمجھ میں آتی ہے, اللہ سے محبت ہوتی ہے, رسول سے پیار ہوتا ہے, آپ کے پیچھے چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, تو مبارک ہے آپ کا سننا, واز اور بیان. اگر یہ نہیں ہوتا ہے, آپ مست قلندر لطیفے کی طرح, جوک کی طرح, مزے لینے کی طرح, جیسے آپ ٹی وی دیکھتے ہیں, جیسے آپ سیل کے اندر جوک دیکھتے ہیں, اگر یہ جوک سسٹم بنا لیے تو یہ جوخم ہے بہت بڑا, بہت بڑا خطرہ ہے آپ کے لیے. اس خطرے سے بچو. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. قرآن کہتا ہے ہرگز نہیں اب ان کو کچھ نہیں ہونا. ران علی قلوبہم, ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا, بما کانوا یکسبون, ان کے کرتوت کی وجہ سے, کرتوت کی وجہ سے, کرنے کی وجہ سے, کرنے کی وجہ سے. گناہ کا وزن کون کرے گا؟ میں اور آپ کون کرے گا؟ وہ اگر وزن کر کے بتا دے, پھر آپ وزن اسے نہ مانے تو کیا آپ اللہ کو ماننے والے؟ جب اللہ بتا دیا کہ سود کا وزن اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے 60 پر 9 درجے, پھر آپ سود لیتے ہیں. جان جانا تھا, سود نہیں لینا تھا. یہاں درس سننے والے بھی سود لے لیتے ہیں. کیا درس سنتے ہیں؟ کہیں تمہارے دلوں پہ اللہ مہر نہ لگا دیں. تمہارے دلوں پہ اللہ کہیں مہر نہ لگا دیں.
इतना इसकी चलन हो गई है। एक साहब हज को जा रहे थे, मेरे पास आए कि पैसे थोड़े कम पड़ गए हैं, मैं इंटरेस्ट को लेके जा रहा हूं हज को। मैंने कहा कसम खुदा कि आपको पानी नहीं मिला है, पेशाब से वजू करके आप नमाज पढ़ रहे हैं। पानी नहीं मिला तो क्या करते हैं? पेशाब करके वजू करते हैं। सुभान अल्लाह। ये पेशाब करके वजू करना बेहतर या तयम्मुम करना बेहतर या नहीं पढ़ना बेहतर? पेशाब और गंदगी ताकि नहीं। इन्ना लिल्लाह। लोग नहीं समझते हैं, मेरी बात नहीं, आप अपने मालिक खालिक की बात समझो ना। आप अपने मालिक खालिक की बात समझो ना। आपको जिंदगी बख्शने वाले की बात समझो ना। आपको मौत देकर हिसाब लेने वाले की बात समझो ना। कौन कहता है आपको किसकी समझना है किसकी सुनना है? आपका जो वजूद है, आप जो बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अल्लाह दुनिया में फैलाए हैं, नफस नफस करम तेरा, सांस सांस में तेरा करम है। इसकी बात सुनो ना, जो एहसान पर एहसान पर एहसान कर रहा है। उससे प्यार इतना होना चाहिए, दिल उसका नाम लेते ही खुश, अल्लाह, मजा आना। क्या बोलना? अल्लाह अल्लाह बोलते क्या ना? ये मजा आया तो समझो आपका दिल में ईमान है। आपके बच्चे से बहुत प्यार है, बहुत दूर से बाहर दूर है, उसका नाम लिया जुनैद। जुनैद बोलते ही अंदर दिल में आती हूँ, मेरा बेटा, मेरा बेटा। माँ के दिल में प्यार आ जाता है, मेरा बेटा। अरे तेरा बेटा तो कुछ भी नहीं, वो बेटा देने वाला है और तुझे जिंदगी बख्शने वाला है। उसका नाम लेते हैं तो प्यार ना है तो तेरा अल्लाह से क्या ताल्लुक है? मुसलमानों, अल्लाह से प्यार का नाम ही ईमान है। अल्लाह से प्यार का नाम, जितना प्यार उतना ईमान, जितना प्यार उतना ईमान। गफलत मत बरतो, मौत तुम्हारे मेरे पीछे है। गफलत मत बरतो, मौत तुम्हारे मेरे पीछे है। बीमार होके जाएंगे या हार्ट अटैक होके जाएंगे या हार्ट फेल होके जाएंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। एक हवा का झोंका अल्लाह भेज देंगे तो फाले जुट नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। कौन है बीमारियां देने वाला? कौन है शिफा देने वाला? अल्लाह। कौन है तंगी में डालने वाला? कौन है रिस्क में कुशादगी करने वाला? अल्लाह। अल्लाह। उससे दिल लगाओ, लव लगाओ, मजा आएगा जिंदगी का। वीरान जिंदगी है ये, वीरान जिंदगी है, वीरान जिंदगी। अल्लाह हिफाजत फरमा। तंजील मिनर रहमानिर रहीम। ये किताब थोड़े थोड़े उतरी है, किसकी जानिब से? रहमान की जानिब से। ये रहमतों की बारिश कर रही है और वो रहीम भी है। फिर बताता है वो किताब कैसी है। किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरानन अरबिय्यन लिकौमिन यअलमून। ये किताब है, उसकी आयतें, उसकी बातें बहुत तफसील से हैं। कहीं समझने वाले के लिए खटक नहीं है। क्या नहीं है? जो इंसान की जरूरत है उसमें खटक नहीं है। जहां दर्जे मिलना है उसमें पटकना है अपने सर को, वो आसान नहीं है। ये बात याद रखो। सिंपल जो चीजें मुसलमान को जरूरी है वो खेती करने वाला भी समझेगा, वो मैकेनिक भी समझेगा, वो दस्तखत नहीं आने वाला भी समझेगा और वो कलेक्टर को भी यही समझ में आएगा। हर एक को अल्लाह ताला यकसा समझा देते हैं। तुझे कैसा रहना चाहिए, तेरा अखीरा क्या होना चाहिए, तेरी लाइफ कैसे होना चाहिए, इसमें कुरान में कोई भी मुश्किल नहीं है। इसी को कुरान ने कहा वलक़द यस्सरनल कुरआन फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को बहुत 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 आसान कर दिया। है कोई नसीहत इससे लेने वाला? बोलो है कोई? है कोई तुम में से नसीहत लेने वाला? है कोई भी नहीं? है बोलो है। मैं हूँ, बोलो मैं हूँ इंशाअल्लाह। वो क्या बोला? मैं हूँ इंशाअल्लाह, मैं हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर।
बहुत आसान कर दिया है। मैं हूँ इंशाल्लाह, मुझे पढ़ना आने की जरूरत नहीं है, लिखने आने की जरूरत नहीं है। इसका तर्जुमा सुन लो किसी अल्लाह वाले से या किसी मौलवी से, तर्जुमा पढ़ना नहीं आता, किसी से पढ़वा लो, कुरान बहुत आसान है। लेकिन गहराई में जाना बोले तो एक है पानी में, हौज में छोटे तीर लेना, तीर आना जरूरी क्या? नहीं। मौजों में तीरना या गहरे पानी में तीरना बोले तो, सीपी लाना जाके, मोती लाना बोले तो, ये हौज में तीरने वाला जाएगा वहां? पागल, छोटी कुएं में उतारेंगे तो तीर नहीं सकता बेचारा, डूब जाता। हौज है, तीर लेता है फुटू फुटू। जितने अकीदे की जरूरत है, जितने अमाल की जरूरत है, जितनी जिंदगी सिंपल बनाने की जरूरत है, कुरान के अंदर वो सब सिंपल है। और मैं करीब होना चाहता हूँ और दर्जे हासिल करना चाहता हूँ, जितने दर्जे चाहिए फिर उतनी मेहनत है। सिंपल पास होना है, 35 नंबर लेना है, बहुत आसान है। चालाक बच्चे के लिए बहुत आसान है, 35 नंबर पास। 100 को 100 लेना बोले तो मेहनत कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। नहीं चुपके आ जाएंगे। स्कूल को गए बगैर भी चालाक बच्चा 35 नंबर ले सकता है, लेकिन 100 को 100 ले सकता है क्या? नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह के पास दर्जात का शौक आ जाए तो मुबारक हो। कम से कम पास होने का तो शौक तो होना ही चाहिए, वरना फिर वहां सजा है। फेल होने पर वहां सजा है। खबर से शुरू होती है सजा, कहां से शुरू होती है? फिर हशर के मैदान में।